गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेनिथ एजुकेशन। आज हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट इनकम टैक्स पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो वो सिर्फ आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें, बल्कि अपना स्किल और नॉलेज डेवलप करने के लिए भी पढ़ें, बिकॉज नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेन विजडम। ओके, अ वार्म वेलकम टू ऑल। हम बात करते हैं इनकम टैक्स की हिस्ट्री की। इनकम टैक्स इंडिया में कैसे आया? इनकम टैक्स की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी बात आती है 1857 की। 1857 में जब इंडिया में विद्रोह चल रहा था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो गया था, और उसी के कारण 1860 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे जेम्स विलियम, उन्होंने इस इनकम टैक्स को लाया। फिर इसके बाद 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को लाया गया, और फिर 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स को लागू कर दिया गया। तो ये थी इनकम टैक्स के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री, बहुत सिंपल सी हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इनकम टैक्स के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की, दैट इज द टैक्स पार्ट। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स में टैक्स क्या होता है। अगर मैं टैक्स को वन वर्ड में डिफाइन करूं तो मेरे लिए टैक्स एक चार्ज है। टैक्स इज अ चार्ज। टैक्स एक चार्ज है। A charge which is mandatory or compulsory to be paid by individual or by entities। कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, पर्सन, उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना ही पड़ेगा। एक चार्ज है जो देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। इंडिविजुअल हो, एज आई इंडिविजुअल, और एंटिटी। अब एंटिटी और इट में बी अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनको भरना ही होगा। हु विल चार्ज दिस चार्ज? द गवर्नमेंट, imposed by government. So what can I say is tax is a compulsory financial charge. Compulsory, a mandatory financial charge imposed by the government. Who will impose this? The government imposed it. On whom? On the individuals, on the entities, private organizations. They have to pay that tax. They have to pay that charge, and which is known as tax. So I simplified the definition here. Tax क्या है? एक compulsory financial charge है जिसे imposed करती है गवर्नमेंट। किस पर? On individuals. When I talk about individuals, not even individuals, even the persons. Who are persons? Persons are individuals. Persons कौन होंगे? Individuals. Persons में आएंगे HUF, that is Hindu Undivided Family. Then association of persons. Person में आएंगे body of individuals. Persons में आएंगे companies, that is corporate. Persons में आएंगे local authorities, और persons में आएंगे artificial persons। कोई भी artificial person और group of person form हुए हैं, they all are responsible to pay the charge. So this is
The government imposed tax on the individuals and entities to generate revenue. What is the reason to levy the tax, which we'll study in the next slide. उसके पीछे कारण क्या है? रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा, उसके बाद ही वो क्या कर पाएगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर कर पाएगी. बेसिकली टैक्स क्या होता है ये समझ में आया. टैक्स एक फाइनेंशियल या मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है. किस पे इम्पोज करती है? इंडिविजुअल्स पे इम्पोज करती है एंड एंटिटीज़ पे इम्पोज करती है. वाई दे इम्पोज सच टैक्सेस, वाई दे इम्पोज सच चार्जेस? टू गेट रेवेन्यू. वाई? For public expenditure. If we see the next, what is the reason? What is the reason to levy such taxes? See, government has many areas where they spend money. It do many expenses, do many expenditures, such as if I say for the social and the welfare, right? For the education purpose, for the society, for the public welfare, then for the schools, government schools, they have to make an expenditure for the government schools, for the institutes, to provide good education. Then the hospitals, they have to maintain the hospitals. They have to provide the pension schemes, incentives, the schemes, the yojanas the government started. For infrastructural developments, in infrastructural development you can see the rail transport, the airport, then the buses, the bus services, the water supply, electricity, and many more, dams, bridges. So what is the source of that revenue? How the government get that revenue? They get from the individuals, entities, persons, private organizations. They charge such taxes from them and they get revenue, and that revenue they use to provide services, to whom? To them only. The government uses that money to provide services. They do expenses in such infrastructure projects, in schools, in hospitals, the public places, dams, infrastructure development. They all use that money for this, and that service provided to ultimately to them. So this is the reason to levy taxes. तो ये एक कारण था टैक्सेस लगाने का. अब अगर हम आगे देखें, that is, who has the power to levy taxes? So let's talk about who has the power to levy taxes, where it is written. सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246. इस आर्टिकल 246 के अंदर, अच्छा ये आर्टिकल 246 कौन से स्केड्यूल में है? दैट इज इन 7th स्केड्यूल. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th स्केड्यूल में आर्टिकल 246 में लिखा है व्हाट? द सेंट्रल and state government, the central and the state government has the power to levy taxes. किसके पास पावर है? सेंट्रल
और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, ठीक है। Who has the power? Central and the state government has the power to levy taxes. Now let's see. According to the constitution, I said central and the state government both has the power to levy taxes. Point to be noted that parliament and the state legislatures have authority to make laws. अब ये जो पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉज बनाने की, तो ये किन के पास है और ऐसा कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 के बाद हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है। 3 लिस्ट मेंशन है। जब हम बात करते हैं इन 3 लिस्ट की तो वो कौन कौन सी लिस्ट है, वो कौन कौन सी 3 लिस्ट है? सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। द सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में मेंशन है। इन तीनों लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर एंट्री 82 है और ये एंट्री 82 पावर देती है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को टू मेक लॉज ऑन इनकम टैक्स। पावर टू वूम, पार्लियामेंट के पास। किसके पास पावर है लॉज बनाने की? पहला नंबर 1 पार्लियामेंट के पास एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास। इन दोनों के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन इनकम टैक्स। ओके, यही बात हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 जिसमें लिखे हुए हैं मैटर्स एंड कंटेन्स 3 लिस्ट। 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट से रिलेटेड मैटर्स है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल से रिलेटेड मैटर्स है और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन प्लस स्टेट दोनों से रिलेटेड मैटर्स कंटेन्ड है, राइट। यूनियन लिस्ट में यू कैन सी the matters related to the central. In the state list you can see the matters related to the state, and in the concurrent list you can see the matters related to the union and the state government. अब point to be noted क्या है यहाँ पे? The power to make laws, जैसे कि मैंने बताया अभी, इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाने का पावर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी इनकम को छोड़ के? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो पावर है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर जो पावर है लॉ बनाने का इनकम के ऊपर, दैट इज विद द यूनियन लिस्ट, दैट इज विद द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज मेंशन्ड इन एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, जो आपको पता होना चाहिए। So what we have studied overall is that what is tax, then why to levy tax? हम टैक्स क्यों लगाते हैं? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? What is the reason behind that? Then who has the power to levy the tax? Who has the power to levy the tax? जो आपको पता चल गया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैज अ पावर टू लेवी द टैक्स। देन लॉज बनाने का पावर किसके पास है? लेवी एंड लॉ दोनों अलग अलग चीज़ें। जब आपसे पूछेंगे लेवी, देन यू विल आंसर स्टेट एंड द सेंट्रल।
जब आपसे पूछेंगे हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज, देन यू विल आंसर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, राइट. Then where it is mentioned, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा कहाँ लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल के अंदर एंट्री नंबर 82 में ऑफ द यूनियन लिस्ट ऐसा लिखा हुआ है. ओके, आगे देखते हैं. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर टैक्सेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं. So basically there are two types of taxes. Number one is direct tax. Number one is direct tax. When we talk about direct tax, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो इनकम के ऊपर डायरेक्टली लगता हो, या तो इनकम के ऊपर या फिर प्रॉफिट्स के ऊपर. टैक्स लेवीड डायरेक्टली, टैक्स लेवीड डायरेक्टली ऑन, पहली बात इनकम पे या फिर प्रॉफिट्स पे, या तो इनकम पे लगे या फिर प्रॉफिट्स पे लगने वाला जो टैक्स है दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. अब बात करते हैं इनकम की. तो इनकम होती है एक इंडिविजुअल की. इंडिविजुअल जब भी अर्न करेगा इनकम, तो उस पे लगने वाला टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स, जो कि सीधा लगेगा. दूसरी बात प्रॉफिट्स की. हु विल अर्न द प्रॉफिट्स? द बिजनेस, कॉर्पोरेट्स विल अर्न द प्रॉफिट्स, और इनके कमाए हुए प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगेगा दैट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स. सो व्हाट कैन आई से ओवरऑल इज दैट द पेयर ऑफ द टैक्स इज दैट इंडिविजुअल और द कॉर्पोरेट और द कंपनी. सो द बर्डन ऑफ टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर. बर्डन ऑफ टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड. आप यहाँ पर टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपने पूरे साल भर में एक एनुअल इनकम अर्न किया. उस एनुअल इनकम पे आपको क्या भरना होगा? इनकम टैक्स. वो इनकम टैक्स जो अराइज होगा आपकी अर्न इनकम के ऊपर, वो इनकम टैक्स आप किसी और को नहीं बोल सकते भरने के लिए. दिस इज़ योर टैक्स. Because you have earned your income, you have to pay the tax on it. So that is why it is known as direct tax. Another example is of the business. आपने पूरे साल भर में एनुअल टर्नओवर कमाया. उस एनुअल टर्नओवर पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा. कॉर्पोरेट टैक्स इज अगेन व्हाट? अ डायरेक्ट टैक्स. वो डायरेक्ट टैक्स आपको क्या करना होगा? उस पर भरना होगा. आप उसका बर्डन किसी और बिजनेस या कॉर्पोरेट पे शिफ्ट नहीं कर सकते. सो व्हाट कैन आई से हियर इज कि कितने तरह के डायरेक्ट टैक्सेस हैं. ओके, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में नंबर 1 आता है इनकम टैक्स, जो कि एक इंडिविजुअल की अर्न इनकम पे लगता है. लेवीड ऑन अर्नड इनकम ऑफ इंडिविजुअल. नंबर 1 ये हो गया इनकम टैक्स. नंबर 2 इज कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कि लेवीड होता है
levied on turnover or profits of business or corporates. इनके कमाए गए एनुअल टर्नओवर पे, एनुअल प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लगेगा, दैट इज नोन एज टू बी द कॉर्पोरेट टैक्स. नंबर 3 इज कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स है जो किसी कैपिटल एसेट को सेल करने पे अराइज होता है, वो होता है आपका कैपिटल गेन, और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स, and such taxes cannot be shifted to any other asset. So tax levy on gain arises on selling capital asset. Okay, so these 3 are the direct tax. Number 4 is the property tax. Property tax. When I talk about the property tax होता है which is paid by the owner of property to the municipal corporation. Property owners जब उस प्रॉपर्टी पे टैक्स भरते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स. टैक्स levy on property and owners pay taxes to municipal corporation. तो ये हो गया प्रॉपर्टी टैक्स. एंड द 5th वन इज द लास्ट वन, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कब लगता है? जब भी सिक्योरिटीज़ यानी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की बाइंग या सेलिंग होती है, तो उनके ऊपर लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड दैट वाज लेवीड बाय द सेबी. Okay, Securities and Exchange Board of India. So this tax is also known as to be the direct tax. तो हमने मेजरली 5 तरह के टैक्सेस पढ़े, जबकि इनकम टैक्स के अंदर हमें सिर्फ एक ही टैक्स पे फोकस करना है, दैट इज इनकम टैक्स, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट टैक्स. एक बार हम डायरेक्ट टैक्स को देख लेते. फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स. Tax levied directly on the income or wealth of a person. पर्सन की वेल्थ पे या इनकम पे लगने वाला टैक्स कहलाता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. इसमें आप प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, देन यू कैन टेक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आप ले सकते हैं. द बर्डन के नॉट बी शिफ्टेड. सबसे मेजर बात, यहाँ पर बर्डन को आप आगे शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और इंडिविजुअल या किसी और कॉर्पोरेट के ऊपर. फिर आगे हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की. इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते. इट इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ये वो टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स ना तो इनकम पे लगता है ना ही किसी प्रॉफिट पे. किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स आता है वो आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इसके ऊपर लगता है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स.
आप उसको वैट भी बोल सकते हैं, दैट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, फिर इसके बाद और कौन से टैक्स है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है। नंबर 4 इज कस्टम ड्यूटी। जब बात करते हैं जीएसटी की, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर वैट, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लगता है हर एक इंटरमीडियरी पे। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है या एक प्रोडक्ट खरीदा गया है ए से, ए इज वन फर्स्ट इंटरमीडियरी, मान लीजिए होलसेलर है, मान लीजिए होलसेलर है, इसने प्रोडक्ट बेचा बी को, द रिटेलर, इसने प्रोडक्ट बेचा सी को, हु इज द अनदर रिटेलर, और सी ने बेचा है डी को, हु इज द अल्टीमेट कस्टमर। Now in indirect tax, the tax is levied at each stage. At each stage, A, B, C, जब ये चारों, बाय इसने क्या किया, सेल किया, इसने क्या किया, बाय किया, यहाँ से इसने क्या किया, सेल किया, इसने क्या किया, बाय किया, अगेन सेल, अगेन बाय। तो हर एक जब सेल हुआ तब क्या लगा उसके ऊपर लगा है जीएसटी। अल्टीमेटली जब इन सब ने जीएसटी पे कर दिया तो ये जो सारा जीएसटी का बर्डन था इन इंटरमीडियरीज का, वो किसके ऊपर गया, कंज्यूमर के ऊपर। ये कंज्यूमर अल्टीमेट बेरर होता है जीएसटी का। ही हैज़ टू पे द प्राइजेस फॉर टैक्सेस एंड दैट जीएसटी will goes to the government. Right now GST में पहले वैट था, अभी हम GST पढ़ते हैं। Same with the excise duty. Excise duty is another indirect tax. Excise duty कब लगता है, on manufacturing. On manufacturing of goods एंड सर्विसेज। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। ये एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, एंड दैट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेजरली आपको 3 टैक्सेस पता होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि वैट है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी अगेन इन इनडायरेक्ट टैक्स, द थर्ड वन इज कस्टम ड्यूटी। द फिफ्थ पॉइंट इज द बर्डन can be shifted to others. यहाँ पर बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे पे। जैसे कि यहाँ पर जब ए ने टैक्स भरा तो उसने कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड किया होगा, उसने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, वो जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और वो जो इंटरमीडियरी ए है वो रिकवर कर लेगा बी से। नाउ हियर द बर्डन इज शिफ्टेड टू द बी। सेम विद बी pays the tax again. Now the burden shifts to the C. B recovers the tax from C and C recovers the tax from D. So ultimate D cannot shift the burden to the another consumer. D यहाँ पे अल्टीमेट बेरर है, D को ही टैक्स भरना होगा अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हम नोट्स में देखें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, द टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, द जीएसटी और द कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स passes to the other।
जो टैक्स बर्डन है विच इज़ नोन एज टैक्स बर्डन। यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है जो टैक्स बर्डन है वो पास किया जा सकता है किसी अदर को इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो आई होप कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक इनकम टैक्स। कि इनकम टैक्स होता क्या है, हम इनकम टैक्स के बारे में देखते हैं। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें इनकम टैक्स कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स जो किस पे लगता है? डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगता है। वो इनकम जो एक पर्सन ने अर्न की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इनकम किसने अर्न की है? एक पर्सन ने अर्न की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च की तारीख, ये पूरा एक 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है। और उस फाइनेंशियल ईयर में, उस 12 मंथ में एक पर्सन ने जो भी इनकम कमाया है, अर्न किया है, उस पे लगाया जाने वाला टैक्स है इनकम टैक्स, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। पर्सन में जब आप देखते हैं तो 7 पर्सन्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटीज़, कंपनीज, आर्टिफिशियल पर्सन्स। ठीक है, तो ये पर्सन्स आ गए। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए, इनकम टैक्स जो लगता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है, क्योंकि जब 1960 से जब इनकम टैक्स एक्ट आया और 1962 में जब वो लागू किया गया, तब से लेकर अभी तक हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही फॉलो कर रहे हैं। दो अभी नया एक्ट आ गया है, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी थ्रू 1961 ओनली। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स लगाया जाएगा इनकम के ऊपर, एंड इट वाज administered by the Central Board of Direct Tax, that is CBDT। लगाया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली है, और उसको एडमिनिस्टर कौन करती है, किसके अंडर में आता है? CBDT के अंदर में। वो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड इज इट इंश्योर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। अगर नेशनल डेवलपमेंट चाहिए तो व्हाट वी नीड द डायरेक्ट टैक्स, because direct tax is a major source of income for the government, and for the national development income tax is the again major source of income. So we need now for the national development income tax, and for the contribution of wealth income tax plays a major role for that. So what we can say overall is income tax is equals to direct tax, which is governed by the Income Tax Act 1961. इनकम टैक्स एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू गवर्न किया गया है। इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, रूल्स है, वो सब एक्ट के अंदर लिखे गए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पहली बात, जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके अंदर टोटल 298 सेक्शंस हैं। इसके अंदर टोटल 298 सेक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो इसमें 14 शेड्यूल्स हैं।
298 sections, 14 schedules. It extends to whole of India, पूरे इंडिया पे लगता है, except Jammu and Kashmir. It extends to whole of India except Jammu and Kashmir. ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में कुछ बातें हैं. पहले इसके अंदर 298 सेक्शंस हैं, दूसरा इसमें 14 शेड्यूल्स हैं. पूरा इंडिया पे लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. इसके अंदर रूल्स, प्रोविजंस, लिस्ट कंटेन है टू गवर्न टैक्सेस. टैक्सेस गवर्न करने के लिए सारे प्रोविजंस इसके अंदर मेंशन किए गए हैं. अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर इनकम टैक्स लगता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, पहली बात, ठीक है. नंबर 2, पूरे इंडिया पे लगता है, ठीक है. नंबर 3, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, जैसे कि मैंने पहले हिस्ट्री में बताया था. 1961 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट लाया गया था और 1962 1 अप्रैल को इट अप्लाइज टू होल इंडिया. ठीक है. इसके अंदर टोटल 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स. क्लियर. तो ये बातें थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में. आगे देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज. जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज की, तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से ये इनकम टैक्स एक्ट जो आया है उसमें रूल्स एंड प्रोविजंस इंक्लूड किए गए, उसको अपडेट कैसे किया जाता है, उसमें कहाँ से शामिल होते हैं लॉज, प्रोविजंस. ओके. तो मेजरली सबसे पहले इनकम टैक्स लॉज कहाँ से है, लॉज की बात करते हैं. इनकम टैक्स के लॉज कहाँ से लिए गए हैं. पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से. दूसरा है इनकम टैक्स लॉज will be part of it. Number 3, the Finance Act. Finance Act से भी laws लिए गए. Number 4, judicial decisions. Judicial decisions are also part of the laws. Number 5, जितने भी notification circulars आते हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आते हैं वो सब क्या है, इस इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है. अगर आप यहाँ देखेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज, व्हाट आर द सोर्सेज कि लॉ कहाँ से लाया गया. नंबर 1 है इनकम टैक्स एक्ट 1961. पहला अगर मुझे देखना हो कि इनकम टैक्स लॉ कहाँ लिखा हुआ है तो वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर. दूसरा है जितने भी रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसके अंदर भी लॉज लिखे गए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं. एनुअल फाइनेंस एक्ट 2021 में भी इनकम टैक्स लॉज है, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2021. नंबर 4 है जितने भी सर्कुलर सीबीडीटी इशू करती है, नोटिफिकेशन सीबीडीटी इशू करती है, वो सब इनकम टैक्स लॉज से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. नंबर 5 इज notifications which are issued by central government and CBDT. जितने भी notifications है जो central government और CBDT इशू करती है वो सब income tax laws से related है. and lastly is the judicial decisions. वो सारे judicial decisions जो income tax law से related है वो सब आप यहाँ से भी देख सकते हैं. तो overall आपको ये 6 sources पता होने चाहिए. कौन कौन से 6 sources है जहाँ से ये law लिया गया है. इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन एंड जुडिशियल डिसीजन. ये हो गए सोर्सेज. सो मेजर 6 सोर्सेज है.
अब अगर हम आगे एक बार देखें तो यहाँ पर वापस से चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो आज हमने टैक्स के बारे में समझा। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स एक चार्ज है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसके ऊपर? इंडिविजुअल और एंटिटीज़ के ऊपर। डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न टू लेवी टैक्सेस? टैक्सेस लगाने का रीज़न क्या है? गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू टू डू एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंसेस फॉर पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर सोशल वेलफेयर। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? इंडिविजुअल से और एंटिटीज से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। हु हैज़ द पावर टू लेवी सच टैक्सेस? टैक्सेस लेवी करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास। पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द अथॉरिटी टू मेक सच लॉज। जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो इस पे क्या बना सकते हैं? लॉज बना सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 के अंदर लिखा है और उसके अंदर 3 लिस्ट थी जैसे कि मैंने बताया। उसमें लिखा सेंट्रल और स्टेट के पास पावर है टू लेवी टैक्सेस, लेकिन लॉ बनाने का पावर किसके पास है? तो वो है पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। और ऐसा कहाँ लिखा है? तो ऐसा यूनियन लिस्ट के एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट में लिखा गया है। लेकिन किस इनकम को छोड़कर? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। अच्छा, कितनी तरह की लिस्ट है? पहली है यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल से रिलेटेड मैटर्स मेंशन किए गए हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट से रिलेटेड मैटर्स मेंशन किए गए हैं। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों से रिलेटेड मैटर्स कंटेन है। फिर हमने समझा द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हमने देखा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स लेवी डायरेक्टली ऑन द वेल्थ ऑफ द पर्सन और ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। जैसे कि मैंने बताया थी, डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखे थे जिसमें इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, देन कैपिटल गेन टैक्स, एसटीटी, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो टैक्स लेवीड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इज इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज। यहाँ पर टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमने देखा एक्साइज ड्यूटी, हमने देखा कस्टम ड्यूटी। फिर हमने देखा व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन डायरेक्टली। ऐसा टैक्स जो कि पर्सन की अर्न इनकम पे डायरेक्टली लगता हो, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हमने देखा कि किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट में और वेल्थ कंट्रीब्यूशन में मदद करता है इनकम टैक्स। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या क्या बातें हैं? पहला, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1962 में एप्लीकेबल हुआ था, 1961 में ये आ गया था। इसके अंदर 298 सेक्शंस है एंड 14 शेड्यूल्स हैं। जब हम बात करते हैं सोर्सेज की तो टोटल मेजर इनकम टैक्स लॉज के मेजर 6 सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहला सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट खुद 1961, दूसरा सोर्स है फाइनेंस एक्ट 2021, फिर इसके बाद जितने भी सर्कुलर्स जो सीबीडीटी इशू करती है वो, नोटिफिकेशंस जो सीबीडीटी इशू करती है, एंड जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, ओके, तो इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे।